Hello students, welcome to the exam idea classes. Myself Humaira Khan. As we are discussing about the reproductive health, our next topic is MTP. MTP indicates medical termination of pregnancy. Voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP. What do you mean about the full term? Full terms means कि जो full term का मतलब है कि the 9th month of pregnancy. 9 month of pregnancy. So voluntary termination. Voluntary termination का मतलब होता है अपने आप से ही प्रेगनेंसी को रिमूव करा देना. That means induced abortion. So voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP, that is the medical termination of pregnancy or induced abortion. It plays important role in decreasing population by aborting unwanted pregnancies. Suppose there is a couple and they do not want a baby, उनको बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वो दैट इज द अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको आप अनवांटेड प्रेगनेंसी बोलोगे. तो वहां पर आपने क्या कराना है, सो यू हैव टू अबॉर्ट द फीटस. तो आपने फीटस को अबॉर्ट कराना होता है. इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन 1971 with some restriction to prevent its misuse such as indiscriminate and illegal female feticide. इंडिया में ये आपकी एमटीपी लीगलाइज हुई थी 1971, लेकिन कुछ इसमें आपके रेस्ट्रिक्शंस भी थी. अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्यों हुई वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए हुई बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स. क्योंकि बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे, बहुत सारे कपल्स ऐसे थे कि जब उनको ये पता चला कि उनकी जो फीटस है दैट इज अ बेबी गर्ल, तो दे वांट टू रिमूव दैट, तो वो उसको रिमूव कराना चाहते थे. दैट इज वाई इसको जो है लीगल परमिशन दी गई, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस. एमटीपी इज यूज्ड टू गेट रिड्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड reproduction or the failure of contraceptives used during rapes or during the reproduction. So when pregnancy continuation could be harmful or even fatal to the mother or fetus. कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाती है बट शी इज़ अनेबल टू कैरी द फीटस इन हर वूम, तो वहाँ पर जो होता है कि बाय द परमिशन ऑफ डॉक्टर्स सो दे कैन डू द एमटीपी. तो वहाँ पर एमटीपी कराई जा सकती है अगर फीटस में कोई प्रॉब्लम है, या तो एमनियोसिंथेसिस कराने के बाद में पता चला कि देयर इज़ अ एबनॉर्मलिटी इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द फीटस, तो एबनॉर्मल है अगर फीटस, तो वहाँ पर आप एमटीपी करा सकते हो. या इट मे बी पॉसिबल कि जो मदर है, मदर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ वाई दे कैन डू दैट एमटीपी. एमटीपी मीन्स द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Now we'll discuss about the sexually transmitted diseases. So what are sexually transmitted diseases? ये sexually transmitted diseases क्या हैं आपकी? Sexually transmitted diseases, these are basically infections. ये किस तरह के आपके infections हैं? Diseases or infections which are transmitted through sexual reproduction and are collectively called sexually transmitted diseases. And its other name is the VD, that is your venereal disease, and the RTI, reproductive tract infection. इसको आप VD और RTI भी बोलते हो. Some common STDs are gonorrhea, syphilis, genital warts, and chlamydiasis, trichomoniasis, hepatitis B/A, and the well-known is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So hepatitis B and HIV is also transmitted by sharing of infected needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood, or from infected mother to fetus. Infected mother से उसके fetus को भी ये जो है disease हो सकती है. Except genital herpes, HIV and hepatitis B are completely curable if detected earlier and treated
प्रॉपरली। सिर्फ जेनाइटल हर्पीस को छोड़कर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सी भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसको आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो उसका, अगर वो आपका एक अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। अगर जो भी पेशेंट है, जिस भी पेशेंट को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो अर्ली स्टेजेस में पता चल जाएगा, सो दैट विल बी द क्योरेबल। Timely detection and proper treatment of STDs are very important, otherwise it could lead to complications later। अगर आपने इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा देर कर दी तो ये कहीं ना कहीं whether it is मेल और फीमेल दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो विच इंक्लूड, और उससे आपकी क्या प्रॉब्लम होगी? सो दैट विल इंक्लूड pelvic inflammatory disease, that is known as the PID, abortion, suppose a female is pregnant but she is having the STD और वो सफ़र कर रही है STD से, तो वहाँ पर क्या होगा? अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, दैट मीन्स समटाइम्स इट हैपन्स, जो डेवलपमेंट है फीटस का डेवलपमेंट जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि फीटस जो है वो डेवलप करता है आपके यूटरस के अंदर, एंड देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड स्पर्म इनटू द फेलोपियन ट्यूब। सो दैट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्टिल बर्थ। एंड इनफर्टिलिटी का मतलब है द कपल विल अनेबल टू गिव द बर्थ ऑफ अ बेबी, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कैंसर भी हो सकता है। इन्फेक्शंस ऑफ एसटीडी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किस तरह से इन्फेक्शन जो है एसटीडी का उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो? सो you have to avoid the sex with unknown partners or the multiple partners, and there are different kinds of the contraceptive devices. The barrier method you can use, and the third one is the go to a qualified doctor in case of a doubt for early detection and get complete treatment if diagnosed। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है, suppose you are feeling some problem, if you are thinking that you are suffering from different kinds of diseases, so you have to go to the qualified doctor, और वहाँ पर आप उसका अर्ली डिटेक्शन कराकर कंप्लीट ट्रीटमेंट आप अपना करा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इन 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन इनफर्टिलिटी से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस जो है लिए जा चुके हैं। So the couples which are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation are called infertile। That means जो कपल है आपका, कपल में एज सच प्रॉब्लम नहीं है बट वो इनफर्टाइल है, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से कोई भी कपल है and they are unable to give the birth of a young ones। The reason could be many physical, कहीं कुछ ना कुछ फिजिक में प्रॉब्लम है, congenital disease है, that means the disease which comes from parents to their children, drugs, या तो वो drug abuser है, immunological और even psychological। Immunological, there are some hormonal imbalance, and the psychological means there are कुछ साइकोलॉजी होती है कुछ पर्सन्स की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर किसी कपल को सपोज कोई कपल इनफर्टाइल है, अब इनफर्टाइल है एंड इनफर्टाइल का मतलब है दे आर अनेबल टू गिव द बर्थ ऑफ ए बेबी, तो उसके लिए नाउ अ डेज देयर इज अ टेक्निक दैट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसको आपने कहा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज योर ART। So ART means infertile couples can be assisted to have children through certain special techniques, that is known as ART, assisted reproductive technology। उसको आपने assisted reproductive technology बोला। अब assisted reproductive technology में जो है आपका अलग अलग टेक्निक्स आती हैं। फर्स्ट टेक्निक इज योर IVF। IVF इज योर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको आपने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के बाहर
जब आप फर्टिलाइजेशन कराओगे, सो दैट इज नोन एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बट यू विल गिव, लेकिन आप क्या करेंगे, आप वो ही इन्वायरमेंट देंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. सो द IVF, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर. फिर वहां पर आप क्या करेंगे, एम्ब्रियो का ट्रांसफर भी करते हैं. दैट इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स. जो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स भी बोलते हो. सो इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, द ओवम फ्रॉम द वाइफ और द डोनर एंड द स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड and induced to fertilize in laboratory conditions. That means you will take the sperm and the egg and you fertilize both and you will get the zygote. Then that zygote will develop into the embryo in vitro. In vitro का मतलब है outside. So that is known as the टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. उसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जानते हो. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक विल बी द ZIFT. ZIFT means zygote intrafallopian transfer. ZIFT zygote intrafallopian ट्रांसफर. zygote, अब zygote का क्या मतलब है आपका, zygote का मतलब ये है कि आपके पास है, you are having sperm plus egg and there is a fertilization in between the egg and sperm and that will form the zygote. अब इस zygote को आपने जो फॉर्म किया है वो आपने किया है इन विट्रो आउटसाइड द मदर वूम. अब इसको आप कहाँ पर ट्रांसफर कराओगे, यू विल ट्रांसफर दिस zygote इनटू द fallopian ट्यूब. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ZIFT, zygote intrafallopian ट्रांसफर. अब zygote intrafallopian ट्रांसफर में क्या होगा, सो द zygote और अर्ली एम्ब्रियो अप टू द 8 ब्लास्टोमियर. 8 ब्लास्टोमियर का मतलब है ये आपका zygote है, दिस इज योर zygote. अब यहाँ पर आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ आपके 2 ब्लास्टोमियर्स बने. अब देन अगेन देयर विल बी द डिवीजन के बाद में फिर आपका ब्लास्टोमियर्स बने एंड आफ्टर दैट देन देयर विल बी द डिवीजन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 8 ब्लास्टोमियर्स. आपके यहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे. सो ये जो 8 ब्लास्टोमियर तक का आपका zygote होगा, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द fallopian tube. That could be transported into the fallopian tube, that is known as ZIFT, an embryo with more than 8 blastomer. The next is IUT, that is your intrauterine transfer. Intrauterine, intra means within the, uterine means uterus. यूटरस के अंदर. अब यूटरस के अंदर आप किस चीज का ट्रांसफर करोगे, सो IUT इनटू द यूटरस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट. दैट मीन्स एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन. इन वीवो, सो इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द मदर वूम, इनसाइड द मदर वूम. और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द मदर वूम, मदर के वूम से बाहर. तो यहाँ पर आप क्या करें, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में द फ्यूजन ऑफ द गैमेट विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज टू सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव. नेक्स्ट टेक्निक इज योर GIFT, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर. गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर का मतलब है we have to transfer the gamete. As we know very well about the gamete, that is the male gamete is the sperm and the female gamete is the egg. So we have to transfer the sperm and egg. So the transfer of gametes collected from a donor into the fallopian tube
of another female who do not produce ovum. तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, तो इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है, ये क्या प्रॉब्लम है कि जो फीमेल है, द फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस द एग फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. दैट इज वाई वी रिक्वायर्ड द एग फ्रॉम द अनदर फीमेल. किसी दूसरी फीमेल से हमें यहाँ पर एग की रिक्वायरमेंट है, तो हम दूसरी फीमेल से, या जिसको हम कहते हैं डोनर फीमेल, हम डोनर फीमेल से उसके एग को लेंगे एंड देन वी विल ट्रांसपोर्टेड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और वहाँ पर हम फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर करेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द gamete. The next one is the intracytoplasmic sperm injection, ICSI. This is a specialized procedure to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. Suppose this is the ovum and this is the sperm. So sperm is directly injected into the egg or ovum. तो इसको आपने कहा intracytoplasmic sperm injection. The last one is your artificial insemination. Artificial insemination, first of all we have to understand about the insemination. Insemination means the suppose there are some sperms, they have to transfer directly into the female reproductive tract. So this is the artificial insemination, not naturally. So infertility cases in which male partners is unable to produce healthy sperms, जहाँ पर healthy sperms का production नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? So that person or the couple will be treated by this technique in which semen collected from donor is artificially introduced into the uterus, or we can say into the female genital tract artificially. So IUI, that is in intrauterine insemination of the female. So all these techniques require extremely high precision handling by the specialized professionals and expensive instruments. So therefore their benefits are limited to certain countries and peoples. Emotional, religious and social factors are prevent the adoption of these methods. So now we have finished this chapter, that is the human reproductive system. Basically we have finished our first unit of the biology. Thank you.